السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا حکم کسے فرمایا؟ ایمان والوں سے فرمایا۔ اور ایمان والوں سے فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم اس دور حاضر کو دیکھیں تو سیدھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سچے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ قرآن پاک سے پوچھے کہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا، تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ اب نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا، اور نبوت کا دروازہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا تو اس کے بعد آئے کون؟ صدیقین۔ صدیقین کے بعد کون آئے؟ شہداء آئے، اور شہداء کے بعد آئے صالحین۔ تو اس دور حاضر کے اندر اگر ہم سچوں کو ڈھونڈنے جائے تو اگر وہ ظاہری طور پر حیات میں اگر ہمیں چاہیے تو وہ ملیں گے صالحین، یعنی کہ اللہ کے ولی۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ صالحین کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اور صالحین کے ساتھ ہو جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلے، ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پر چلے، ہم قطب عالم سرکار سراج الدین شاہ عالم سرکار، علی جی گامدنی، وجیہ الدین سرکار، شاہ محمد نذیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ غلام محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اولیاء کرام کی جماعت ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم چلیں گے تو یہ ہمارا راستہ سچوں کے ساتھ چلنے والا راستہ ہو جائے گا۔ اور جب ہم ان راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر سایہ پگن ہو جائے گی۔ اب آج کی تقریر کے اندر جس معظم ہستی کے بارے میں جو ذکر کرنا ہے، معظم ہستی کے بارے میں جو ذکر کرنا ہے، وہ ہستی یہ ہے کہ جن کا عرس مبارک اسی ماہ مبارک کے اندر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عروج عطا فرمایا ہے۔ اس ذات پاک کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی عزتوں سے نوازا، بہت ہی کرامتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ ایک بات یاد رہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حسنی حسینی سید ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسنی حسینی سید ہے، اور آپ نجیب الطرفین کہے جاتے ہیں، یعنی کہ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو حسنی اور حسینی سید ہو۔ الغرض جب بات ان کی کرنی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی کرامتیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا بنایا، اور آپ اپنی زندگی کے اندر
किस तरह से आपके उमूर थे और किस तरह से आपका तकवा और परहेजगारी थी और किस तरह की आपके करामतें थी, किस तरह की आपके करामतें थी। मौजूद सामने कराम, सबसे पहले तो ये कि जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया, जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो उससे 40 दिन पहले, आपकी विलादत के 40 दिन पहले आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके मामू जान जो अल्लाह के बहुत बड़े वली है, जिनका नाम तारीख के अंदर बताया जाता है सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये आपके वाली, आपके मामू जान है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब के अंदर आए और ख्वाब के अंदर बशारत दी कि मंसूर बताही, तुम्हारे हमशिरा के वहां, यानी कि तुम्हारी बहन के वहां एक अल्लाह तबारक व ताला एक बेटे को पैदा करेगा, एक बेटे को जन्म देगा जो अल्लाह तबारक व ताला का बहुत करीब होगा और अल्लाह तबारक व ताला उसके सर पर विलायत की दस्तार बांधेगा और एक जमाना उसके फैज से मुस्तफिज होगा और मखलूक खुदा को उसके इल्म से, उसके सोहबत से बहुत बड़ा फायदा होगा और अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब मिलेगा। आपके मामू जान हजरत सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जब ये ख्वाब के अंदर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई तो ठीक 40 दिन के बाद आपकी हमशिरा, आपकी बहन के बतन पाक से अल्लाह तबारक व ताला ने सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को पैदा फरमाया। और ख्वाब के अंदर जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी वो ये भी थी कि जब वो बेटा पैदा हो जाए, जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम अहमद रखना। क्या बताया था कि उसका नाम अहमद रखना, और अहमद रखने के बाद जब वो शऊर की मंजिल पर आ जाए तो उसको फला फला उस्तादों के पास दीन की तालीम हासिल करने के लिए भेजना। गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई के अंदर आपका नाम भी बता दिया आपकी पैदाइश से 40 दिन पहले, और आपको किन किन उस्तादों के पास दीन की तालीम के लिए भेजना है, उन उस्तादों का नाम भी आपके मामू जान रहमतुल्लाह ताला अलैहि को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फला उस्ताद के पास भेज देना, फला उस्ताद के पास ये तालीम के लिए भेज देना। तो आपके मामू जान ने देखा कि करीब 40 दिन के बाद आपकी बहन के बतन पाक से अल्लाह तबारक व ताला ने एक बेटे को जन्म दिया और एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम हजरत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रख दिया। आपके जद्दे अमजद की निस्बत से आपके सिलसिले को रफाई कहा जाता है, आपके जद्दे अमजद के निस्बत से आपके सिलसिले को रफाई सिलसिला कहा जाता है और रफाई नाम से आपका सिलसिला मशहूर है। और एक जमाने ने और लोगों के बहुत सारे लोगों ने आपके फैज से वो लोग मुस्तफिज हुए। अलगर्ज जब आपकी पैदाइश हो गई आपका नाम अहमद रख दिया, और जब आपकी उम्र 7 साल हुई, तारीख के मुताबिक जब आपकी उम्र 7 साल की हो गई तो आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज फरमा लिया, आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज फरमा लिया। और कुरान पाक हिफ्ज फरमाने के बाद जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको तालीम के लिए भेजने का फला फला उस्ताद के पास कहा था, उन लोगों के पास भेजा। तो उम्र गुजरती गई, दिन गुजरते गए, आप तालीम हासिल करते रहे, यहां तक कि आपकी 20 साल की दुनियावी उम्र हुई। उस वक्त आपने तमाम ज़ाहिरी उलूम के ऊपर कामयाबी हासिल कर ली और तमाम ज़ाहिरी उलूम जितना अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा आपने तमाम के तमाम इल्म हासिल कर लिए। 20 साल की उम्र के अंदर आपने तमाम इल्म हासिल कर लिए। इसके बाद अपने मामू जान सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास रहे और आपने तसव्वुफ भी सीखा और उस इल्म को मुज़य्यन किया। अलगर्ज आपकी जिंदगी की बात करें तो आप मखलूक खुदा के ऊपर बहुत मेहरबान थे, मखलूक खुदा के ऊपर आप बहुत मेहरबान थे। यहां तक कि अगर आपके जिस्म के किसी भी उज़्व के ऊपर अगर कोई मच्छर आकर बैठ जाए
और मच्छर अगर आपका खून पीता हो, मच्छर का काम खून पीना होता है, जब किसी के उज़्व के ऊपर बैठ जाए, हाथ पर बैठ जाए, चेहरे पर बैठ जाए, पांव पर बैठ जाए, तो वो अपना 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 वो नाखून जो होता है या अपना वो जो बाल का रिश्ता होता है जिसको अल्लाह ताला ने उसको खून पीने के लिए रखा है, वो एक नाली की तरह होता है। तो जब भी किसी उज़्व के ऊपर बैठता है तो वो अपने उस दांत को या उसके नाखून को वो इंसानी जिस्म के अंदर, चमड़ी के अंदर पेवस्त कर देता है और वो खून पीता है। तो जब आपके जिस्म के ऊपर कभी भी मच्छर बैठता और वो खून पीता, तो आमतौर पर इंसान की आदत क्या होती है, जैसे ही पता चला कि मच्छर बैठा है और खून चूसता है, ऐसे उसको मच्छर को मार दिया जाता है या उसको उड़ा दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है। लेकिन आपका ये तकवा था, आपका ये तकवा था कि जब तक वो पेट भरकर आपका खून न पी लेता था, उस वक्त तक आप उस मच्छर को भी नहीं उड़ाते। यहां तक कि चरिंद परिंद कोई भी चौपाया हो, कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो जो माजूर हो, जो आपकी नजरों से गुजर जाए, तो आप उसकी खैरगिरी किया करते थे, उसकी मदद किया करते थे, आप उसको सहारा दिया करते थे। यहां तक कि आपके इलाके के अंदर एक कुत्ता जिसको खारिश की बीमारी हो गई, खारिश किसको कहते हैं, खुजली की बीमारी को। अब जब ये बीमारी लगती है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी अगर एक को हुई है तो दूसरे को लगने में देर नहीं होती है। तो उस इलाके वालों ने, आपके इलाके वालों ने उस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने इलाके से बाहर कर दिया, इलाके से बाहर कर दिया। जब सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यह पता चला कि उस कुत्ते को जो खारिश ज़दा था उसको लोगों ने इलाके से बाहर कर दिया, तो आप इलाके के बाहर उस कुत्ते के पास गए, उसके पास जाकर बैठे और नरम कपड़े से उसके जख्मों के ऊपर आप सहलाने लगे, यहां तक कि कुत्ते को अच्छा महसूस हुआ और आप उसकी तीमारदारी करते, आप उसका इलाज भी करते। यहीं तक कि कई दिनों तक आप उस कुत्ते का इलाज करते रहे, कुत्ते का इलाज करते रहे, यहां तक कि वो कुत्ता तंदुरुस्त हो गया। और जब तंदुरुस्त हो गया उस वक्त तक आप उसको खिलाते भी रहे, पिलाते भी रहे, अच्छी तरह से उसकी तीमारदारी भी करते रहे, यहां तक कि जब आखिर के अंदर ऐसा लगा कि ये कुत्ता अब अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, बीमारी उसकी खत्म हो गई, तो उस कुत्ते को गर्म पानी करके नहला दिया और नहलाने के बाद उस कुत्ते को आजाद कर दिया गया। तो आपका ये तकवा था, आप मखलूक खुदा के ऊपर इतने मेहरबान थे और इतनी शफकत फरमाया करते थे। मौज सामने करम क्या बताऊं, जब आपकी उम्र बढ़ती रही, आपकी उम्र बढ़ती रही, यहां तक कि 28 साल या 27 साल की उम्र जब दुनियावी आपकी हो गई, तो उस वक्त आपके मामू सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दुनिया के दिन पूरे होने का वक्त आया। तो आपने सोचा कि मेरे मनसब के ऊपर मेरी जानशीनी का हकदार मेरा बेटा बने। जब ये बात छिड़ी तो आपकी मुम्मानी जान, जिसको मामी कहा जाता है, आपकी मुम्मानी जान कहने लगी कि मेरा बेटा आपका जानशीन बनेगा, लेकिन आप फरमाते थे कि नहीं, उसका हकदार मेरा बांजा यानी कि अहमद कबीर रिफाई है। तो मियाँ बीवी के अंदर ये बात चलने लगी, चेमगोया होने लगी। आप फरमाते कि मेरा बांजा लायक है और आपकी ज़ौजा कहने लगी कि मेरा बेटा लायक है। तो जब आखिर वक्त आ गया कि जानशीनी के ऊपर किसी को बिठा दिया जाए, तो उस वक्त आपने दोनों को बुलाया, यानी कि सैयद अहमद कबीर रिफाई को भी बुलाए और आपके बेटे को भी बुलाए। और बेटे को बुलाने के बाद आपने अपनी ज़ौजा से फरमाया कि दोनों का मैं इम्तिहान लेता हूं, जो इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाएगा वो मेरी जानशीनी का हकदार होगा। आपकी ज़ौजा ने कहा ठीक है। तो आपने दोनों को फरमाया कि तुम लोग जाओ और खजूरों के पत्ते तोड़कर लाओ, खजूरों के दरख्त के पत्ते तोड़कर लाओ। तो इराक के इलाके के अंदर खजूर के पत्तों को हासिल कर लेना ये कोई बड़ी बात न थी, बल्कि जगह जगह पर खजूरों के दरख्त थे। तो दोनों गए तो उसके बाद आपके जो साहिबजादे थे, यानी कि हजरत सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो बेटे थे, वो बहुत सारे पत्ते तोड़कर आपके वालिद की खिदमत में लाकर रख दिए। हजरत सैयद मंसूर बताई की खिदमत में लाकर रख दिए और बहुत देर हो गई, लेकिन सैयद अहमद कबीर रिफाई अभी तक वापस न आए। तो बहुत देर के बाद जब वो आए तो उनके हाथ खाली थे, कुछ भी लेकर नहीं आए थे। हालांकि यहां से यह कहा गया था कि खजूर के दरख्त के पत्तों को तोड़कर तुम्हें लाना है, लेकिन वो वापस आ गए। जब आपके मामू ने आपसे पूछा कि बेटा अहमद,
तुम्हें मैंने खजूरों के दरख्त के पत्ते तोड़कर लाने का बोला था, मेरा बेटा तो लेकर आया है, लेकिन तुम क्यों लेकर नहीं आए हो? तो सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मामू जान मैं करूं तो क्या करूं, जिस दरख्त के पास जाता हूं उस दरख्त के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज आती है। हर किसी के तने के पास जाता हूं, किसी दरख्त के पास जाता हूं, पत्ता तोड़ने के लिए पत्ते के करीब होता हूं, तो हर चीज के अंदर से जिस चीज को तोड़ने के लिए मैंने कोशिश की तो वहां से अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी। भला मैं अल्लाह का जिक्र जो चीज कर रही हो उसे मैं उसके पौधे से अलग करने की कैसे कोशिश कर सकता हूं? तो जहां पर भी मैं गया तो वहां पर मुझे अल्लाह के जिक्र की पौधों के अंदर से, पत्तों के अंदर से आवाज आई, तो इसलिए मैंने कोई भी पत्ता, कोई भी तना, कोई भी शाख न तोड़ी और खाली हाथ आपके पास में आ गया। अब रही बात यह कि उस पत्तों के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज आना, तो कुरान पाक कहता है युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी कि जमीन और आसमान के अंदर जो जो चीजें हैं वो सब की सब अल्लाह का जिक्र करती है। तो सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब खजूरों के तने पत्ते तोड़ने के लिए गए तो हर पत्ते से, हर शाख से, हर तने से ये आवाज आती थी, अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी। तो आपने ना तोड़ा और मामू जान की खिदमत में हाजिर हो गए तो आपके मामू ने आपकी मुम्मानी से फरमाया कि देखो ये फर्क है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा बांजा ही जानशीनी का हकदार है। और सामने इकराम आपकी मुम्मानी को भी ये बात समझ में आ गई और सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह को जानशीन मुकर्रर कर दिया गया और आपकी जानशीनी के हकदार भी वही हुए। इसके बाद आपने ये भी फरमाया अपनी जोजा से, किसने? सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी फरमाया कि मैंने अल्लाह की बारगाह में बार बार मैंने हाथ उठाकर दुआ किए कि मौला मेरी जानशीनी का हकदार मेरा बेटा बने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर दुआ के बाद ये इल्हाम हुआ है नहीं, बल्कि तुम्हारी जानशीनी का हकदार तुम्हारा भांजा सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह है। तो मौजूद सामने कराम अल्लाह तबारक व तआला ने सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहुत बड़ी उलुल अज़्मी अता फरमाई, बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया। किस्सा अल मुख्तसर, आपकी जिंदगी के पहलू को अगर समेटने की कोशिश करो तो आखिर में यही एक वाकया नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप कितने मकबूल थे। जब आप हज के फरीज़े को अदा करने के लिए जब आप तशरीफ ले गए, हज के फरीज़े को अदा करने के लिए जब आप तशरीफ ले गए, अरकान हज आपने अदा कर लिए, इसके बाद जो हर जाहिर की, हर हाजी की ये उम्मीद होती है, तमन्ना होती है कि जल्दी से जल्दी आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्ताने के ऊपर चला जाऊं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्ताने के ऊपर जाने वालों के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे तुरबत की जियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यहाँ का करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, लेकिन यहां पर पोता जा रहा था अपने जद्दे अमजद की जियारत करने के लिए। एक आम इंसान की जियारत करना और होता है और अल्लाह वालों की, अल्लाह के नबी की जियारत करना और होता है। जब आप इंसान जाता है तो उसको तुरबत अथर नजर आती है, गुंबद खजरा नजर आता है, लेकिन जब अल्लाह वाला जो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का प्यारा होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, लेकिन जब वो जाता है तो उसकी जियारत का मामला अलग होता है। कैसा मामला होता है? वहां पर उसे कोई दरो दीवार नजर नहीं आते, बल्कि वहां पर जाकर उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूबहू नजर आ जाते हैं। तो अलगर्ज जब सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहां पर पहुंचे, सुनहरी जालियों के सामने जब पहुंचे, तुरबत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब पहुंचे और आपने सलात व सलाम अर्ज की, मौजूद सामने कराम आपका वाकया कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि जब सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुवाजा शरीफ के सामने जब खड़े हो गए, अर्ज करने लगे कि मेरे जद्दे अमजद जब मुझे आपकी याद आती थी तो मैं आपके ऊपर दुरूद व सलाम भेजा करता था, लेकिन आज मैं आपके दरबार पर हाजिर हो गया हूं।
آپ کے بالکل سامنے حاضر ہو گیا ہوں، کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ نے سلام اس انداز میں فرمایا کہ السلام علیک یا جدی، جد کہتے ہو دادا کو، جد کہتے ہیں دادا کو، تو آپ نے سلام کیا کہا کہ السلام علیک یا جدی، السلام علیک یا جدی۔ تو اس وقت تربت رسول سے یہ آواز آئی وعلیکم السلام یا ولد، وعلیکم السلام یا ولدی۔ تو آپ نے اپنے جد امجد کو سلام کیا اور فرمایا کہ السلام علیک یا جدی، اے میرے دادا جان، اے میرے جد امجد، آپ کو سلام ہو۔ تو تربت رسول کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلامتی ہو۔ تو یہ مقبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ الغرض آپ نے فرمایا کہ حضور جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے سنا بھی، لیکن یہ مقام تو میں اپنے گھر رہ کر بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں سلام کروں، آپ میرے سلام کا جواب دے۔ تو میں یہاں پر آیا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا، میرے جد امجد، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارکہ کو باہر نکالیں تاکہ میں اس کا بوسہ لوں اور شرف دوسی حاصل کروں اور مقبولیت حاصل کروں۔ معزز سامنے کرام، جیسے ہی آپ نے یہ عرضہ پیش کیا کہ نانا جان میں آپ کا ہاتھ مبارک چومنا چاہتا ہوں، آپ کے دست مبارک پر بوسہ دینا چاہتا ہوں، تو تاریخ گواہ ہے، روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ نے عرضہ پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ باہر نکالا اور سید ابو احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور اس کو بوسہ دیا، اپنے سر پر رکھا۔ اس کے بعد آقا نے اپنے دست مبارکہ کو اندر واپس لے لیا۔ تو اب یہ مقبولیت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والے جو ہے وہ سچے لوگ ہیں، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔